ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਫॉर द ਮਿਰਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰਸ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਮਿਰਰ, ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਮਿਰਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਰਨਲੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਰਨਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ। ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਸ਼ਡ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਪੋਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਲ ਐਫ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ object and mirror is represented by small u। उसमें से की है u ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है the distance between image and mirror is represented by v। ਸਮੋਲ v ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਯੂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਿਰਰ ਨੂੰ, ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਮਿਰਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਕहीं ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਲ the distance are measured from pole। थोड़े स्केल ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ measure along the incident light, यानी कि in the direction of incident light जिस दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ इंसीडेंट लाइट जा रही है ਅਸੀਂ ਉਸੇ दिशा 'ਚ पोल तो रख के दूरी मिन रहे हैं। तो in the incident light taken as पॉजिटिव, उसमें ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, पॉजिटिव। अगर ਅਸੀਂ पोल तो रख के दूरी इस लाइट दे, लाइन इस तरह से जा रही है, जीरो तो आप इधर ਨੂੰ मिन रहे हैं,
the distance measure opposite direction of incident light taken as negative। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਗੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, upside of principal axis positive, downside negative। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਐਂਗਲਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ, ਵਰਟੀਕਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਈਨਸ ਐਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ, ਐਂਗਲ 1 ਐਂਡ ਐਂਗਲ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 2 ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ। ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 3 ਐਂਡ 4 ਵੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ 5 ਐਂਡ 6, 7 ਐਂਡ 8, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। रीजन की है सारे का कोरसपोंडिंग एंगल्स। नैक्सट असी पढ़ांगे ये अल्टरनेट एंगल्स। दो पैरलर लाइन्स है, एक इंटरसैक्टिंग लाइन, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਐਂਗਲ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 2, ਐਂਗਲ 3 ਐਂਗਲ 4, ਐਂਗਲ 3 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ 4। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਰਟੀਕਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ। ਵਰਟੀਕਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦੋ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਕੁਏਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਸਮੋਲਰ ਹੋਵੇ। ਅਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਇਕੁਏਟ, ਅਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਸ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ 180 ਤੋਂ ਬਿਗਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਗਰ ਫਰੋਮ 180 ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ 3 ਐਂਗਲਸ ਇਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ 180। ਐਂਗਲ ਏ, ਐਂਗਲ ਬੀ, ਐਂਗਲ ਸੀ ਦਾ ਸੈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 180। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 6, 7 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ
ਓਪੋजिट डायरैक्शन च बाहरले कोण दे बराबर हुंदा है। इन्हां सब प्रॉपर्टीज़ नूं लैके आपां की है इस टॉपिक नूं की है कवर अप करांगे। रिलेशन बिटवीन फोकस एंड फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ करवेचर आर। इस दे वास्ते सानू की चाहिए, एक कनकेव मिरर चाहिए। कनकेव मिरर जिहड़ा आपां लवांगे वो स्मॉल अपर्चर वाला लवांगे, यानी कि आपां उहदी लेंथ की है स्मॉल लेवांगे। कनकेव मिरर विद इट्स स्मॉल अपर्चर, ਉਹਦੇ स्मॉल अपर्चर ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲੇਨ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਸੀਡਰ ਆ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। कनकेव मिरर ले लिया जिसका अपर्चर स्मॉल आ। आप इस लिए लिख रहे हैं बिकॉज आप इसका यूज़ करना है। ये अपनी अजम्पशन हुई, अजम्पशनस का मतलब होंगे आप कंडीशनस लगाते हैं भी असी इस तरीके दे नाल इस चीज़ नूं फाइंड करांगे। जिहदे विच की है एक पोल है जिसनूं पी नाल रिप्रजेंट किया, फोकस है एफ दे नाल रिप्रजेंट किया एंड सेंटर ऑफ करवेचर है उसनूं सी दे नाल रिप्रजेंट कर रहे हाँ। उस तो बाद की होएगा, एक आप रे ड्रॉ कर लांगे जिहड़ी की है पैरलर आ रही है प्रिंसीपल एक्सिस से। ड्रॉप आ लाइट ओ ए पैरलर टू द प्रिंसीपल एक्सिस फॉल्स ऑन मिरर। लास्ट वीडियो च आपां पढ़िया सी भी जो लाइट पैरलर आ रही हुंदी आ आफ्टर रिफ्लैक्शन किहदे विचों पास हुंदी आ, फोकस विच। तो स्पैशली तुहानूं कहा सी जदों भी आपां मिरर्स का इस्तेमाल करना उस समय आपां रे डायग्राम ही बनानी है तो रेस नूं एरोज़ दे नाल रिप्रजेंट ही किया जाता है। इत्थे आपां ही लिखिया भी आफ्टर रिफ्लैक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस, वो फोकस दे विच ही पास कर गया। लास्ट वीडियो च तुहानूं दस्सिया सी तो मिरर ते कोई भी लाइन, चाहे सी तो पी तक की लाइन होगी, चाहे सी तो ए तक की लाइन होगी, ए की हुंदी आ नॉर्मल ही होंगी है। सेंटर तो मिरर तक जो भी लाइन जाएगी, जो भी रे जाएगी वो हमेशा नॉर्मल के अकॉर्डिंग ही जाएगी। नैक्सट है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन की कहते से सैकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसीडेंट एंड नॉर्मल, the angle between incident ray and normal is always equal to the angle of reflected ray and normal। जिहड़ा रिफ्लैक्टेड दे रे ते नॉर्मल दे विचकार एंगल बनदे आपस च की होणगे बराबर। वी रिप्रजेंट इट कॉमन नेम थीटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन। तो आप इन्हां नूं की कहांगे एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू एंगल सी ए एफ। रीजन की है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन। सैकेंड आप की कह रहे हैं जो ओ ए लाइट है वो पैरलर टू प्रिंसीपल एक्सिस है तो आपकी इंटरसैक्टिंग लाइन होगी सी ए इज इंटरसैक्टिंग। आप इनू रिप्रजेंट लिख सकते हैं ओ ए पैरलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और सी ए इज इंटरसेक्टिंग line। therefore angle ACF equals to angle CAO। कारण की हो गया अल्टरनेट एंगल। नैक्सट सिमिलरली अपने को यही चीज़ की है सेम ही ओ ए है जो पैरलर टू
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, OF is intersecting, therefore angle OAF equals to angle AFP। लिख देंगे ना, कि लिखेंगे एंगल OAF equals to angle AFP। रीजन सेम, अल्टरनेट एंगल। OAF एंगल OAF अपने किस एंगल के बराबर है, OAF इक्वल टू एंगल OAC प्लस एंगल CAF, यानी कि एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू AFP। तो की हो जाएगा, नाउ वी कंस्ट्रक्ट, इत्थों असीं की है कि कंस्ट्रक्शन कर देंगे, की कंस्ट्रक्शन कर वी कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट आप कर देंगे एक परपेंडिकुलर, तो आप ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप आ परपेंडिकुलर AN on principal axis। then ਆਪਾਂ देखो इत्थे ਆਪਾਂ प्रूफ किया लास्ट वी प्रूफ एंगल AFP इक्वल्स टू एंगल 2 थीटा। तो आप इसमें इत्थे रिप्रजेंट कर देंगे, तो आप ये भी प्रूफ किया था एंगल ACF एंगल CAO के बराबर है, यानी कि ये एंगल 8 थीटा है, तो ये भी की हो जाएगा एंगल थीटा। देन आप अपने को क्या हो गया, एंगल ट्रायंगल ANC 90 डिग्री की वजह कर राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ANC। तो की आ गया tan थीटा, वी नो दैट tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है AN, बेस क्या है CN। देन आप क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू AN अपॉन CN। ओके, नाउ आप स्टार्टिंग दे विच जो आप कंसैप्ट स्टार्ट किया था, तभी मैंने बोला था कनकेव मिरर ऑफ द स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर यानी कि बहुत छोटा होना, परपेंडिकुलर का बहुत छोटा होना। अगर ये खुद ही अपर्चर स्मॉल है तो ये तो उससे भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे भी, अगर किसी तुसी देखो अगर अपने को ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अकॉर्डिंग टू दिस आप कह सकते हैं भी आ लाइन ते आ लाइन आपस बराबर होंगे, अप्रॉक्सीमेटली लगभग बराबर होंगे, बिकॉज आ बहुत छोटा है। ਇਹਦਾ मतलब जे आ बहुत छोटा है तो इत्थे एंगल भी बहुत छोटा बनया एज कंपेयर टू ਇਹਦੇ। इसे तरीके नाल असीं इत्थे रिप्रजेंट कर देंगे की कवांगे भी वी कनकेव मिरर हैज़
small aperture, therefore tan theta approximately equals to theta। इसका इहदी जगह ते आपां की भर देंगे only अभी नेक्स्ट हम क्या लेंगे, सेकंड ट्रायंगल। ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम क्या देंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ANF, ANF तो इत्थे की आ जाएगा tan 2 थीटा, ये किदे बराबर आ जाएगा AN ओवर FN। सिमिलरली फिर से आप कह देंगे कनकेव मिरर हैज़ स्मॉल अपर्चर, देयरफॉर tan 2 थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा। हले एंगल दे बराबर लिख देंगे इनू, बिकॉज ट्रिग्नोमैट्री सारे ने पढ़िया ही होया है भी 0 डिग्री tan 0 हुंदा है, ठीक है ना। जे 0 डिग्री है तो 0 के बराबर ही है, इसका कोई फर्क नहीं भी आप इनू की आपस च बराबर लिख सकते हैं। जे ज़्यादा बड़ा हो जाता एंगल तो जाके सानू वैल्यूज़ का tan का फर्क पैंदा, स्मॉल वैल्यूज़ लिए सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। सिमिलरली मैं तुहानू दस्सिया भी आ लाइन ते आ लाइन आपस इक्वली अप्रॉक्सीमेटली इक्वली है, इस कारण वी कैन से आ डिस्टेंस बहुत छोटा है NP, इत्थे आपां लिखांगे NP इज़ very small, therefore NP approximately equals to NP is small, CP approximately equal to CN, similarly FN approximately equal to FP। तो सिमिलरली आप इत्थे लिख देंगे फर्स्ट स्टैप तो अपने को की बन गया थीटा इज इक्वल टू AN ओवर CN की जगह ते आप की लिख सकते हैं CP। इत्थों आप की लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू AN, FN की जगह ते की लिख सकते हैं आप FP। ये साड़ी सारी कंस्ट्रक्शनस होंदियां, ये सानू सब की जरूरत पैंदी है बिकॉज साडे कोले रूल्स ने भी ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। सारे दे सारे डिस्टेंस असी कित्थों मिलने आ, पोल तो मिलने आ। द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन, ये साडे कोल साइन कन्वेंशनस हुंदे आ मिरर दे। all distance in the direction of incident light is अकॉर्डिंग टू दैट साइन कन्वेंशनस जो आप पढ़ चुके सी पहला, तो मैं तो दोबारा भी रिप्रजेंट कर रही हाँ। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस असी पोल तो मेजर करने, इस कारण असी की किया जो असी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उस परपेंडिकुलर नूं असी की है स्मॉल कह के निगलैक्ट करवाता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत स्मॉल है 0.5 डिग्री 0.5 भी नहीं होएगा, इस कारण असी की कहता CN ते CP आपस च इक्वल। सिमिलरली FN ते FP भी आपस च इक्वल, तो आप उन्होंने की इत्थे रिप्रजेंट करता। हुण आ एंगल की वैल्यू आप इत्थे भर सकते हैं, तो की बन गया 2AN ओवर CP इज इक्वल टू
AN/FP। तो मल्टीप्लाई च अपन पता ही है भी कैंसल हो सकते हैं। तो की बन गया साढ़े को 2CP/1FP। तो CP साढ़े को की हुंदा है रेडियस ऑफ करवेचर, FP की हुंदा है फोकस। दोनों ही की ओपोजिट पोल तो इंसीडेंट लाइट इस दिशा च आ रही है, आपां की पोल तो इस दिशा च मिल रहे हैं, इस कारण की होएगा FP टेकन एज नैगेटिव। रीजन लिखांगे की है तो ओपोजिट डायरैक्शन, ओपोजिट टू इंसीडेंट लाइट। सिमिलरली CP-R ਇਹਦਾ रीजन भी की है ओपोजिट टू द इंसीडेंट लाइट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2CP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -R -F माइनस ना माइनस कैंसल हो गया तो साढ़े को की हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई की तो R इज इक्वल टू 2F के बराबर आ गया। ये आप किहदे लई प्रूफ किया फॉर कनकेव मिरर लई। नैक्सट आप प्रूफ करांगे इसनूं कन्वैक्स मिरर लई। सिमिलरली सब कुछ साढ़े को कन्वैक्स मिरर लई भी होएगा। कन्वैक्स मिरर लई भी उवें आप स्मॉल अपर्चर लवांगे, सब कुछ करांगे। इहदे वास्ते आप की है डायग्राम ड्रॉ करन जा रहे हैं। तो असीं की कीता एक कन्वैक्स मिरर लै लिया। इसकी डायग्राम ध्यान नाल समझ लैनी है, थोड़ी जी कॉम्पलीकेटेड हुंदी है डायग्राम। कन्वैक्स मिरर दी इनर साइड पॉलिश्ड हुंदी है, इसका पोल हो गया, इसका ही फोकस हो गया, इसका ही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक लाइट हमेशा रिफ्लैक्टिंग सरफेस तो ही आ रही हुंदी है, तो एक लाइट पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस आ गई। आफ्टर स्ट्राइक ये वापस जाती है, बट सानू अपीयर हुंदा है कि की है फोकस चो पार हो रही है। नैक्सट एक लाइट असी हमेशा की है नॉर्मल ड्रॉप करते हैं CA, जिमें लास्ट तो नॉर्मल ड्रॉप की सी इत्थे आपां A पॉइंट ते CA, तो इसनूं भी आपां अगे ड्रॉप करता वधाता। नॉर्मल दे नाल इंसीडेंट लाइट का एंगल की हुंदा है, एंगल I रिप्रजेंटेड बाय आपां थीटा कर दिंदे आ। सिमिलरली सानूं पता नॉर्मल ते रिफ्लैक्टेड लाइट का भी एंगल कितना हुंदा है R। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन आपां की कह देंगे दोनों एंगल्स आपस च की है बराबर है। हुण देखो साढ़े कोले OA ते आ लाइन आपस च पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो CA इसकी इंटरसैक्टिंग लाइन है। अगर आ एंगल थीटा है तो आ भी एंगल की हो जाएगा थीटा हो जाएगा। आ लाइन ते आ लाइन आपस च क्रॉस कर रही है तो ये एंगल की हो गया वर्टिकल ओपोजिट एंगल। ऐदा हुंदे ना वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स आपस च, दो इंटरसैक्टिंग लाइन दे ओपोजिट एंगल्स का। सिमिलरली क्रॉस बन रहा दोनों के आपस जोड़े एंगल ओपोजिट, अगर आ थीटा है तो आ भी एंगल थीटा हो जाएगा। नैक्सट सानू पता है ट्रायंगल, एक आ ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अंदरले दो कोणों का जोड़ इंटीरियर टू सम ऑफ द इंटीरियर टू एंगल्स आर इक्वल टू द ओपोजिट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि थीटा प्लस थीटा की हो जाएगा 2 थीटा। डायग्राम दे विच इन्ना प्रॉपरली समझ आ गया। हुण असीं की करांगे इसनूं रिप्रजेंट करांगे सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस। इत्थे भी आपां की करांगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ए पी है तो यह ड्रॉप किया आपां परपेंडिकुलर N। सिमिलरली आपां सब कुछ लिखना है, जो कुछ मैं बोलिया पर लिख रहे हैं हुण। एंगल RA इनू कोई नाम दे दो S, RAS इक्वल्स टू एंगल CAF वर्टिकली ओपोजिट एंगल, दोनों एंगल थीटा थीटा हो गए। सिमिलरली आपां की कवांगे OA पैरेलल टू PC यानी कि प्रिंसीपल एक्सिस, और CS
ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ, देयरफॉर की कह देंगे आप एंगल एस ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नैक्सट आप की क्या सी इन ट्रायंगल ए एफ सी इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा की हुंदा ओपोजिट एंगल के बराबर। नैक्सट आप की किया आ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया ए एन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आप की किया सानू पता है परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन एफ ये की होएगा tan 2 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए एन ओवर बेस एन एफ। फिर आप की भी आप क्या सी अपर्चर इज स्मॉल देयरफॉर tan 2 थीटा किदे बराबर आ गया 2 थीटा दे। ओके फिर आप इसनू की लिखांगे 2 थीटा इज इक्वल टू ए एन ओवर एन एफ दे। सिमिलरली आप की करांगे इसे डायग्राम तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन सी ये की आ गया tan थीटा इक्वल्स टू ए एन ओवर बेस एन सी। सिमिलरली aperture is small therefore tan theta approximately equal to थीटा दे हो जाएगा। दैन की करांगे आप इसनू थीटा इज इक्वल टू ए एन ओवर एन सी। आप इत्थों की करांगे इस 2 थीटा दे विच थीटा की वैल्यू भर देंगे तो की आएगी 2 थीटा दे विच 2 इंटू थीटा की आया अपने को ए एन ओवर एन सी इक्वल्स टू इत्थे वैल्यू कितनी अपने को ए एन ओवर एन एफ। सिमिलरली साढ़े को की रह गया 2 अपॉन एन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन एफ। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो आप लास्ट पढ़िया सी की साइन कन्वेंशनस पढ़िया सी आप ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसीडेंट लाइन टेकन एज पॉजिटिव एंड ओपोजिट टू द नैगेटिव। तो सिमिलरली आप इत्थे भी वही लगावांगे ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एन सी ते एन एफ नॉट फ्रॉम द पोल। तो असी पोल तो रिप्रजेंट करने वास्ते फिर तो की कवांगे अपर्चर इज स्मॉल from diagram NF approximately equal to FP. Similarly CN approximately equal to PC। तो आप इत्थे भर देंगे तो आ डिस्टेंस कितना हुंदा अपने को 4F। डिस्टेंस में की बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल तो सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं इंसीडेंट लाइट इस दिशा च आ रही है
पोल तो F वाल ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਗਏ, पोल तो C वाल ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਗਏ, ਤਾਂ डिस्टेंस आर टेकन एज पॉजिटिव। तो ਆਪਾਂ ਕੀ कहता है 2R इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R कितना आ गया 2F। कनकेव मिरर ਲਈ ਵੀ सेम सी, कन्वैक्स मिरर ਲਈ भी सेम होगी, तो आप यही प्रूफ करना सी।